एवरीवन, वेलकम बैक टू यू विद्यार्थी। आई एम आकांक्षा, योर इंग्लिश टीचर, और हम कर रहे हैं आपके इस चैप्टर के आगे के क्वेश्चन आंसर्स जो कि कंटिन्यू हो रहे हैं, ये वही वाले हैं। सो भाई उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि भाई अब ई विद्यार्थी आपको दे रहा है फ्री डाउनलोड। जो चाहिए वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज। यहां पर आप कर सकते हैं एमसीक्यू की प्रैक्टिस, साथ ही साथ आपको मिल जाने वाली है एक समरी भी और एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस जो हम ढूंढ ही रहे होते हैं कि कहां मिल जाएंगे, है ना। तो भाई ये वीडियो पूरी देखेंगे, उसके बाद जो चाहिए वो डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। नमस्ते बच्चों। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग टुडे? वेलकम टू आवर सेशन। आज हम आपकी टेक्स्ट बुक से समबडीज मदर पोएम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। आर यू रेडी? Go on, grab your notebooks and a pen, and let's get started. Alright, so here's our first question. We're going to read an extract from the poem and then answer some questions based on it. Simple. Okay, let's read it together. The woman was old and ragged and gray, and bent with the chill of the winter's day. The street was wet with a recent snow, and the woman's feet were aged and slow. तो इन लाइंस का मतलब है कि एक बूढ़ी औरत थी जिसके कपड़े फटे पुराने थे और वो सर्दी की वजह से थोड़ा झुकी हुई थी। सड़क पर ताज़ा स्नो गिरी थी, इसलिए वो गीली थी, और उम्र की वजह से उस औरत के कदम भी बहुत धीरे धीरे उठ रहे थे। So our first question is, what does the phrase ragged and grey refer to? यानी ये जो phrase है ragged and grey, इसका क्या मतलब हो सकता है? Have a good look at the 4 options and think carefully about which one is the right fit. Go on, I'll give you a moment. Write down the correct option in your notebook. The correct answer is B, the woman's old and worn out appearance. ऐसा इसलिए क्योंकि ragged का मतलब होता है फटे पुराने कपड़े, और grey यहाँ उनकी उम्र और थकी हुई हालत को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये फ्रेज उनके ओल्ड और worn out appearance के बारे में है। Now for the next one. Complete the following sentence with a suitable reason. हमें इस sentence को एक proper reason देके complete करना है। The sentence is, the woman was bent with the chill of the winter's day because she was. इसका मतलब है कि वो औरत सर्दी से इसलिए झुकी हुई थी क्योंकि वो। सोचो, what could be the reason here? Alright, take a minute and try to complete this sentence in your notebook. Let's look at the answer. The woman was bent with the chill of the winter's day because she was weak, shivering and suffering from the cold due to her old age. मतलब वो अपनी ज्यादा उम्र की वजह से कमजोर थी, ठंड से कांप रही थी, और इसी वजह से सर्दी उन्हें ज्यादा लग रही थी और वो झुककर चल रही थी। Okay, next up we need to identify the fact and the opinion. अब याद रखिएगा, fact वो चीज होती है जिसे हम प्रूफ कर सकते हैं, जो सच है, और opinion किसी का अनुमान या personal thought होता है। So sentence A is, the street was wet with recent snow, and sentence B is, the woman was too weak to cross the street on her own. सोच के बताइए, which one is a fact and which one is an opinion? I'm sure you can figure this out. Just write fact or opinion next to A and B in your notebook. Right then, let's check our answers. Sentence A, the street was wet with recent snow, is a fact. क्योंकि ये हम देख सकते हैं, it can be proven. But sentence B, the woman was too weak to cross the street on her own, ये एक opinion है. It's an interpretation. हम उनकी हालत देखकर ऐसा अनुमान लगा रहे हैं, पर ये कोई proven fact नहीं है. And here is our next question. Why do you think the woman's feet were described as aged and slow? So आपसे पूछा जा रहा है कि आपको क्या लगता है पोएट ने उस औरत के पैरों को aged and slow, यानी बूढ़ा और धीमा क्यों कहा है? What's the reason behind using these specific words? Think about it for a second. Try to write the answer in your own words in your notebook. Okay, let's discuss the answer. The woman's feet were described as aged and slow to show her frailty, poor health, and difficulty in moving, emphasizing her helplessness. इसका मतलब है कि पोएट ने ये वर्ड्स यूज किए ताकि वो उनकी कमजोरी, उनकी poor health और उन्हें चलने में जो मुश्किल हो रही थी उसे हाईलाइट कर सकें। इन शब्दों से उनकी helplessness यानी उनकी लाचारी और भी साफ नजर आती है। Fantastic! You all did some really great work today. You understood all the questions so well and wrote down the answers. Well done! And always remember, जैसे उस लड़के ने पोएम में हेल्प की, we should also always be ready to help those in need. नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है। चलिए आज हम मिलकर Let us think and reflect सेक्शन से कुछ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सवाल जवाब सॉल्व करते हैं। बहुत मजा आएगा। रेडी है ना? तो शुरू करें। सबसे पहले हम इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ेंगे। He guided the trembling feet along, proud that his own were firm and strong. Then back again to his friends he went, his young heart happy and well content. इसका मतलब है उस लड़के ने कांपते हुए पैरों को सहारा देकर रास्ता पार कराया। उसे इस बात पर गर्व था कि उसके खुद के पैर मजबूत थे। फिर वो अपने दोस्तों के पास वापस चला गया और उसका दिल बहुत खुश और संतुष्ट था। ठीक है, अब हमारा पहला सवाल इसी एक्सट्रैक्ट से है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, What does the contrast between the trembling feet of the old woman and the firm and strong feet of the boy emphasize?
ये सवाल पूछ रहा है कि ट्रेम्बलिंग फीट यानी बूढ़ी औरत के कांपते हुए पैरों और लड़के के फर्म एंड स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत पैरों के बीच का जो कॉन्ट्रास्ट यानी अंतर है वो किस बात पर जोर देता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप इसे अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। द कंट्रास्ट emphasizes the difference between weakness and strength, old age and youth, and highlights the boy's ability to help the frail woman. अब समझते हैं कि ये आंसर क्यों सही है। देखिए, ट्रेम्बलिंग फीट का मतलब है कमजोरी और बुढ़ापा, वहीं दूसरी तरफ फर्म एंड स्ट्रॉन्ग फीट का मतलब है ताकत और जवानी। पोएम में इस अंतर को इसलिए दिखाया गया है ताकि ये पता चले कि लड़का उस कमजोर औरत की मदद करने के काबिल था। सिंपल है ना? बहुत बढ़िया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये एक फिल इन द ब्लैंक है। सवाल है, The poem tells us that the boy was proud that his feet were strong. This tells us that the boy was dash. यानी पोएम हमें बताती है कि लड़के को प्राउड महसूस हो रहा था कि उसके पैर स्ट्रांग हैं। इससे हमें लड़के के बारे में क्या पता चलता है? यहाँ प्राउड होने का क्या मतलब है? हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एरोगेंट अबाउट बीइंग स्ट्रांग या ग्रेटफुल फॉर हिज एबिलिटी टू हेल्प। पहले ऑप्शन का मतलब है कि उसे अपनी ताकत पर घमंड था और दूसरे ऑप्शन का मतलब है कि वो शुक्रगुजार था कि वो किसी की मदद कर सका। आपको क्या लगता है कौन सा आएगा ब्लैंक में? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है ग्रेटफुल फॉर हिज एबिलिटी टू हेल्प। ये इसलिए सही है क्योंकि पोएम की आखिरी लाइन कहती है हिज यंग हार्ट हैप्पी एंड वेल कंटेंट। इससे पता चलता है कि वो मदद करके खुश था, ना कि उसे घमंड था। तो उसका प्राउड फील करना एक पॉजिटिव फीलिंग थी। शाबाश। अब चलते हैं हमारे तीसरे सवाल पर, जो एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द बॉय मोस्ट लाइकली टू टेल हिज फ्रेंड्स ऑन गेटिंग बैक? ऑप्शंस हैं, ए, आई एम सो ग्लैड आई कुड हेल्प हर, बी, आई एम वरीड अबाउट हर सेफ्टी, सी, आई एम सरप्राइज शी फॉरगॉट टू थैंक मी, डी, आई एम थैंकफुल फॉर ऑल योर सपोर्ट। सवाल का मतलब है कि जब लड़का अपने दोस्तों के पास वापस गया तो इस बात की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि उसने उनसे क्या कहा होगा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आई एम सो ग्लैड आई कुड हेल्प हर। ये जवाब इसलिए सही है क्योंकि पोएम की लाइन है हिज यंग हार्ट हैप्पी एंड वेल कंटेंट। जिसका दिल खुश और संतुष्ट हो वो यही कहेगा ना कि आई एम सो ग्लैड आई कुड हेल्प हर, यानी मैं बहुत खुश हूं कि मैं उनकी मदद कर सका। बाकी ऑप्शंस उसकी इस खुशी वाली फीलिंग से बिल्कुल मैच नहीं करते। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सब। अब हम आते हैं अपने आखिरी सवाल पर। इसमें हमें एक फॉल्स सेंटेंस को ठीक करना है। हमें जो गलत सेंटेंस दिया गया है वो है द यंग बॉयज एक्शंस वर ड्रिवन बाय अ लॉजिकल डिसीजन। इसका मतलब है कि लड़के ने जो भी किया वो एक सोचा समझा लॉजिकल फैसला था, लेकिन पोएम को पढ़कर हमें ऐसा नहीं लगता, इसीलिए यह स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इसका सही करेक्शन होगा द यंग बॉयज एक्शंस वर ड्रिवन बाय काइंडनेस एंड एम्पैथी, नॉट जस्ट अ लॉजिकल डिसीजन। इसका अर्थ है कि लड़के ने जो किया वो दया और हमदर्दी यानी काइंडनेस एंड एम्पैथी से किया, ना कि सिर्फ लॉजिक या दिमाग से सोचकर। उसने अपने दिल की सुनी। वाह, आप सबने बहुत अच्छा काम किया और सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सही सॉल्व किए। तो देखो, हम इस पूरे टॉपिक को 3 इजी पार्ट्स में समझेंगे। फर्स्ट, हम ओल्ड वुमन के पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे, फिर उस काइंड बॉय के एक्ट के बारे में बात करेंगे, एंड फाइनली हम पोएम की जो डीपर मीनिंग है उसको डिस्कवर करेंगे। सिंपल। Alright, so let's jump right into our first section, the old woman's perspective. यहाँ हम उनके डर और उनकी helplessness को explore करेंगे. Okay, so our first question is, what might be the old woman's fears as she waited for a long time at the crossing? तो ये question क्या पूछ रहा है? Simple, ये पूछ रहा है कि जब वो old woman इतनी देर तक क्रॉसिंग पर वेट कर रही थी, तो उनके मन में, उनके दिमाग में क्या-क्या डर चल रहे होंगे? Let's think about. And here's the answer. The old woman might have feared slipping on the snowy road, being knocked down by carriages or horses, and not receiving help from the busy crowd around her. चलो, इसको आराम से ब्रेक डाउन करते हैं. So basically, उनके मन में 3 बड़े डर थे. Number 1, slipping on the snowy road. मतलब उन्हें डर था कि वो उस स्नोई, बर्फीली सड़क पर फिसल सकती हैं. Number 2, being knocked down by carriages or horses. यानी उस टाइम पर जो carriages और घोड़े आते जाते थे, उनसे टक्कर लगने का डर था. And number 3, not receiving help from the busy crowd. सोच के देखो, आसपास इतनी भीड़ है, लेकिन उन्हें ये डर था कि कोई उनकी हेल्प करने के लिए आगे नहीं आएगा. Alright, let's move on to the next one. Question number 2. How does the poet show the helplessness of the old woman? Support your answer with evidence from the poem. So ये question हमसे पूछ रहा है कि पोएट ने यानी कवि ने उस ओल्ड वुमन की हेल्पलेसनेस को, उनकी लाचारी को कैसे शो किया है, कैसे दिखाया है. और इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमें अपना आंसर पोएम से एविडेंस देकर यानी सबूत देकर सपोर्ट करना है. Okay, let's look at the answer. The poet describes her as weak, poorly dressed, and scared. She stood alone and uncared for as people passed by, which highlights her helplessness. तो इसका मतलब क्या हुआ? पोएट ने उनकी हेल्पलेसनेस को, उनकी कंडीशन डिस्क्राइब करके शो किया है.
जैसे वो वीक थीं यानी कमजोर थीं, वो poorly dressed थीं मतलब उनके कपड़े अच्छे नहीं थे, फटे पुराने थे, और वो scared भी थीं यानी डरी हुई थीं। और इतना ही नहीं, वो वहाँ बिल्कुल alone खड़ी थीं, अकेले और uncared for थीं, मतलब लोग उनके पास से निकल रहे थे पर किसी को उनकी कोई चिंता, कोई परवाह नहीं थी। यही उनकी हेल्पलेसनेस को हाईलाइट करता। और जो एविडेंस की बात हुई थी वो ये रहा, सीधे पोएम से। द पोएटिक एविडेंस इज ओल्ड एंड रैगेड एंड ग्रे एंड टिमिड अफ्रेड टू स्टर। देखो, पहला फ्रेज ओल्ड एंड रैगेड एंड ग्रे हमें बताता है कि वो बूढ़ी थी। रैगेड मतलब उनके कपड़े फटे हुए थे और उनके बाल ग्रे थे। और दूसरा फ्रेज टिमिड अफ्रेड टू स्टर, इसका मतलब है वो टिमिड थी यानी बहुत ही डरी हुई, सहमी हुई, इतना कि उन्हें स्टर करने से यानी जरा सा हिलने से भी डर लग रहा था। सी, दिस इज पावरफुल एविडेंस। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द ओल्ड वुमन। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड सेक्शन की तरफ, द बॉयज काइंड एक्ट। चलो, अब उस काइंड लड़के के एक्ट को एनालाइज करते हैं। सो हियर्स क्वेश्चन नंबर 3 फॉर यू। व्हाई डज द बॉय डिसाइड टू हेल्प द ओल्ड वुमन? व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट हिम? तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। पहला, लड़के ने उस ओल्ड वुमन की हेल्प करने का डिसीजन क्यों लिया? व्हाट वाज हिज रीजन? और दूसरा पार्ट, उसके इस एक्ट से, उसके इस काम से हमें उसके कैरेक्टर के बारे में क्या पता चलता है? एंड द आंसर इज the boy helps her because he feels empathy and imagines his own mother in her place. This shows that he is thoughtful, kind-hearted and compassionate. तो इसका सिंपल सा मतलब यह है कि वो लड़का उनकी हेल्प इसलिए करता है क्योंकि वो एम्पथी फील करता है। बच्चों, एम्पथी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है किसी और की फीलिंग्स को समझना, उनके दुख को महसूस करना। और वो उस ओल्ड वुमन में अपनी खुद की मदर को इमेजिन करता है। अब इससे उसके कैरेक्टर के बारे में क्या पता चला? दैट ही इज थॉटफुल, मतलब वो सोचने वाला इंसान है। ही इज काइंड हार्टेड यानी उसका दिल बहुत अच्छा है। एंड ही इज कंपैशनेट मतलब उसके अंदर दया की भावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। How was the boy's approach towards the old woman different from that of the other boys in the group? So यहाँ हमें एक comparison करना है। हमें बताना है कि जो kind boy था, उसका approach, उसका बर्ताव उस old woman के प्रति ग्रुप के बाकी लड़कों से, the other boys, से कैसे different था, कैसे अलग था? Let's see the answer. While the other boys hurried past and ignored her, this boy paused, spoke gently, and helped her cross the street safely, showing his caring nature. देखो कितना clear difference है। जो other boys थे, वो क्या कर रहे थे? They hurried past and ignored her. मतलब वो तेजी से उनके पास से गुजर गए और इन्हें बिल्कुल इग्नोर कर दिया। लेकिन जो हमारा काइंड बॉय था, उसने क्या किया? He paused, वो रुका। He spoke gently, उसने उनसे बहुत प्यार से, आराम से बात की। And he helped her cross safely. इससे क्या पता चलता है? It shows his caring nature. Fantastic. अब हम आ गए हैं अपने फाइनल एंड आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, द पोम्स डीपर मीनिंग। चलो, अब इस पोम का जो सेंट्रल मैसेज है ना, उसको अच्छे से समझते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, जस्टिफाई द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल ऑफ द पोम। अब ये थोड़ा ट्रिकी लग सकता है। जस्टिफाई द अप्रोप्रिएटनेस का मतलब है कि हमें प्रूव करना है, रीजंस देकर बताना है कि पोम का जो टाइटल है समबडीज मदर, वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट क्यों है, मतलब एकदम परफेक्ट क्यों है। एंड हियर्स व्हाई इट्स सो परफेक्ट। द आंसर इज the title Somebody's Mother is appropriate because it reminds readers that every elderly person is special to someone and deserves love, care and respect. सोच के देखो, ये टाइटल हमें क्या रिमाइंड कराता है? ये याद दिलाता है कि हर बुजुर्ग इंसान, every elderly person, वो अकेले नहीं है, वो किसी ना किसी के लिए बहुत स्पेशल हैं। वो किसी की माँ हो सकती हैं, किसी के पिता हो सकते हैं, and that's why वो सभी लव, केयर और रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। That's a beautiful thought, isn't it? And now we've reached our final question. What does the poem suggest about the role of empathy and humanity in society? तो ये लास्ट क्वेश्चन हमसे पोएम का सबसे बड़ा मैसेज पूछ रहा है। ये पोएम हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए एम्पैथी और ह्यूमैनिटी यानी संवेदना और इंसानियत के रोल के बारे में क्या बताती है? What is the big lesson? Here's the beautiful answer. The poem teaches that empathy and humanity are essential for a compassionate society. Small acts of kindness, like the boy's help, can bring hope and warmth to others' lives. तो इसका मतलब है कि ये पोएम हमें सिखाती है कि एम्पैथी और ह्यूमैनिटी किसी भी कंपैशनेट सोसाइटी के लिए यानी एक दयालु समाज के लिए एसेंशियल हैं, यानी इनके बिना काम नहीं चल सकता। और जो छोटे छोटे काइंडनेस के काम होते हैं ना, स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, जैसे उस लड़के ने हेल्प की, वो किसी की लाइफ में होप यानी उम्मीद और वार्मथ यानी एक अपनापन ला सकते हैं। और बस इस इमेज को देखो, इट सेज इट ऑल, राइट? अ स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस, एक छोटा सा नेक काम, सच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। सो आई होप आपको चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय क्यूटीज। तो करना क्या है? लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।